Hello, everybody. Thank you so much for tuning in today to the Viewpoint 1.0. Thank you so much for all the comments and the likes and the subscriptions that you have done to our channel. Today, we are here to do another already famous song that is by Honey Singh. I'm a Maniac. Yeah. So, this is what we are gonna do. I'm a with you today. Maniac नाम नहीं है, नाम सिर्फ Maniac है. Oh, okay. Maniac. Okay, so you ready, yeah? Yeah. 1, 2, 3, and go. Bazwangu takda nara like a maniac, mengi rakda kara like a maniac. Yeah. Kabru chadda para like a maniac, celebi rakda thara like a maniac. Kam sare dede kare munda like a maniac, mengi mari baby like a maniac. Kam jira chede pura kare like a maniac, masale na bede hal kare like a maniac. I'm a maniac, I'm a maniac. मैं तो बच के रही I'm a maniac, I'm a maniac, I'm a maniac. मैं तो बच के रही I'm a maniac. Okay. Okay, so before getting to that part, so what do you have to say? What do you like? What would you like to say? Yeah, so I was gonna say कि वो उसकी जो top of the Burj Khalifa खड़ा है वो, is it Yes. edited or is it real? I think it it is. looked like real. Yeah, probably a very good editing. Yes, probably if it is editing, it's probably a very good job. Yes. Yeah, अगर वो editing नहीं है तो फिर भी like I think there are just few people, बहुत कम लोग हैं दुनिया में इस time जो Burj Khalifa yes, की I बिल्कुल know. top पे Agree. जिन्होंने shoot किया है. Yes, I And know. I've heard वो इतना top के ऊपर है कि बंदे को वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता है. Apart from that, I think it's a really good start. I am kind of digging the music. To be honest, I am not. जो भी इसने bars जो भी बोला है अभी तक, he's saying stuff, but to be honest, what is he saying? You know, sometimes you say something, but Okay. you need to understand अच्छा. what is the essence of it. For example. It's like मैं जो लिखाई है, that is हाँ. very weak. उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं कहूँ कि यार फ्लेक्स कर रहा है और बहुत बेसिक फ्लेक्स कर रहा है. दिस इज व्हाट आई वुड से. ऐसी चीज़ मुझे- क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन हनी सिंह से बहुत ज़्यादा है. आई थिंक मे बी इस वजह से हो सकता है. I don't know, expect मुझे तो ठीक लगा बिकॉज देखो गाने के लिरिक्स आम मैनियक हैं, ठीक है. और हमें पता है कि हनी सिंह हैज़ बीन क्वाइट ओपन अबाउट इट कि उसकी खुद की बाइपोलर डिसऑर्डर की हिस्ट्री है. हाँ. और वो बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है पहले भी जो डिक्लाइन आया था उसके करियर में वाज बिकॉज ऑफ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग. things. आई गेट और दैट. एक मिनट, और उसमें हमें पता है कि आपको क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है इसके अंदर, तो वी नो कि बाइपोलर के अंदर आपके डिफरेंट फेजेस आते हैं, डिप्रेसिव एंड मैनियक फेजेस. सो आई थिंक ये गाना की इंस्पिरेशन जो उसके अंदर थोड़ी सी फील्स के साथ गाना गा रहा है ना, ही इज डिगिंग दैट काइंड ऑफ इमोशन बिकॉज ही लुक एट द ग्रैंड पिक्चर. ही इज सेइंग आई एम अ मैनियक एंड ही इज ऑनिंग इट. और दुनिया जो है वो ऐसे लोगों को डिस्कार्ड करना शुरू कर देती है. एंड ही इज सेइंग आई एम अ मैनियक बट स्टिल सी वेयर आई एम. No. I completely agree what you're trying to say, but the thing I am trying to say is कि I need more from him. पंजाबी इंडस्ट्री इतनी evolve हो चुकी है, इतने गाने lyrically इतने strong हमें मिल चुके हैं गाने कि सिर्फ वीडियो से Let's hear चलो, बाकी का yeah, गाना. I'm not before- convinced yet. I'm not convinced Okay, yet. Sorry. let's hear it first. I try not to look at these kind of shots. The background में reverb चल रहा है ना मैनियक का. That is quite interesting. That is tying it together. Wait. Nice contrast. I like it. जो दूसरा उसने लैंग्वेज इन्वॉल्व की है, वी हैव बीन हियरिंग अबाउट इट. और वो लिरिक्स में भी नीचे क्रेडिट्स में भी लिखा है भोजपुरी. ऑफ कोर्स हमें उस तरह लैंग्वेज का उतना नहीं पता, लेकिन नाइस कंट्रास्ट विद म्यूजिक एंड विद डिफरेंट लैंग्वेज एज वेल. और ये हनी सिंह ने खुद भी इंटरव्यूज में बोला है कि कंट्रास्ट इज समथिंग दैट ही लाइक्स. I understand. I once again understand what you're saying, but thing is like
मेरे ख्याल से जो मुझे लगा है, it's हाँ. and I'm kind of quite amazed. It feels like a half cooked thing. ऐसे मुझे लगा है जब से ये फीमेल का पार्ट आया, ईशा गुप्ता जब से आई है, उससे पहले the song was going that way. And then we had, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा सैंपल बीच में डाल दिया है. तो यही तो कंट्रास्ट होता है. I understand. They are two completely different things. But they have to somehow link together. They have to linking together. No, I don't think so. इतना, या फिर एडिटिंग पे जॉब इतनी अच्छी नहीं हुई हुई. जब मैं हनी सिंह की बात करता हूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ हनी सिंह के बारे में कि मैंने इसको बहुत शुरू से फॉलो किया. ठीक है, Yeah, if you're a 90s kid, that is what you got up. मुझे याद है 2011-12 में मैंने जिम जाना शुरू किया था, तो पहली दफ़ा. ठीक है, एंड हनी सिंह उस वक्त बहुत हाइप पे था. ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने ये नोट किया कि जब भी हम जिम जाते हैं, जितने मैं वेट उठा रहा था ना, जब मैं हनी सिंह गाने जिम में लगा था ना, तो आई यूज्ड टू डू मोर लिफ्टिंग. तो लोग सिद्धू के बारे में बोलते हैं ना कि यार इसके गाने सुन के बंदे में जान आती है, ये कर देते हैं. सुनो लिसन, यू हैव टू लेट मी कंप्लीट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वीडियो. मैंने पहली दफ़ा चीज़ की थी हनी सिंह के बारे में. व्हाट डिड आई डू वाज, जितने भी इसके गाने आए थे उन सारे गानों में से इसके हनी सिंह के रैप कट करके डाउनलोड आईडीएम से डाउनलोड करके कट करके अपना एक ट्रैक बनाया 33 मिनट्स का. अच्छा. एंड आई यूज्ड टू लिसन टू दैट ओनली, जो उसकी सिर्फ रैप थी. सही है. आई एम दैट डाई हार्ड फैन ऑफ हनी सिंह. लेकिन मसला ये है कि दिस इज नॉट इनफ नाउ. Maybe this was enough 2013-14, maybe it was enough, but the problem is the industry has evolved so much, and there is so much good work have been done in industry. This does not cut it in today's day. This is what I'm saying. ठीक है, अच्छा है. I like it. म्यूजिक थोड़ा अच्छा है, कंट्रास्ट शो कर रहा है. भोजपुरी लैंग्वेज के साथ उसने कोलैब किया है. वी हैव सीन कि इसने पहले भी डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोगों के साथ कोलैब करना स्टार्ट किया, जो कि हमें नहीं नज़र आता. तो अब इस गाने के अंदर हमें इंग्लिश नज़र आ रही है, हमें हिंदी नज़र आ रही है, काइंड ऑफ उर्दू, बट हमें साथ भोजपुरी नज़र आ रही है, हमें पंजाबी नज़र आ रही है. द 4 लैंग्वेजेस इन वन फ्रेम. I agree. नहीं, इस कहाँ पे देखे आपने? मुझे नज़र आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन है. मुझे एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट में कभी ख़राब भी होती है, लाइक आप बेटर भी हो जाती है, बट आप उसको बिल्कुल डिस्कार्ड तो ना करो. मैं फिर वही बात कहूँगा, एक्सपेरिमेंटेशन करने में कोई मसला नहीं है, करो, रज के करो. लेकिन अगर आप इतने बड़े आर्टिस्ट हो ना, तो पुट आउट समथिंग दैट बेसिकली इज पैरेलल टू योर ग्रैंडियर इन द इंडस्ट्री. तो जो उसका नाम जितना बड़ा है, वन ऑफ द 4 fathers he calls himself as a desi hip hop. ठीक है, and I agree with him when he says that, but the thing is you need put out the work that backs that as well, and this song does not do that. This is what I'm saying only. I don't know, मुझे थोड़ा सा ये जो इसने आखिर में, अच्छा बहुत लंबा हो रहा है, अभी इसको करते हैं, फिनिश करते हैं ना, बाकी करते हैं बाद में. ठीक है, तो लेट्स गो. Let it go. No, I want to say it right now. Let it go. Yes, it's finished. Okay, yeah, go ahead. मैंने पहले से कहा क्योंकि मुझे गाना अच्छा लग रहा है ओवरऑल. ठीक है, म्यूजिक बहुत कैची है एंड एवरीथिंग, लेकिन आई डू नॉट नो कि हनी सिंह को फीमेल्स ऑब्जेक्टिफाई करना इसके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. Yes. व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम? क्या ये 15, 20, 25 साल का लड़का है? ही इज अ 40 years old man. मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया है कुछ आर्टिस्ट को, हिप हॉप के आर्टिस्ट को. उनमें से एक एमिनेम है. ठीक है, ही इज़ अबाउट 50 नाउ. ठीक है, when he was dropping music in 2000 early 2000s, that was relevant to his age and that era. Yeah. ठीक है, वो 3 decades में अभी तक उसके जितने भी गाने आते हैं वो relevant to today's world हैं. And he's talking about his age at the minute. He's talking about the current issues. He's talking about
जी मुझे लगता है हनी सिंह ने शुरू से ही उसका वो उधर ही फंसा हुआ है, हाँ, 20 साल में ही फंसा है। देखो मैं ये नहीं कहती एज कि आप एज आर्टिस्ट evolve मेरे ख्याल से इतने ज्यादा नहीं हुआ जितना करना शायद कह और दूसरी सकते बात ये जो एक और बात छोटी सी बात करने, लिखा गाना लियो ने, लियो की पेन गेम पहले गाने में लोगों ने कहा बहुत अच्छी है, बहुत मजा आया, हनी सिंह भी खुद कहा था इंटरव्यू में वो अच्छी गाने, ठीक है, लेकिन ही इज अ वेरी लिमिटेड आर्सेनल यस एज अ राइटर आई वुड से चीजें रिपीट हो रही हैं, गिलरी से भी 2-3 बार्स मैं सुन चुका हूं मुझे उसमें। तो लग रहा है शायद और इसने उसमें से लिरिक्स भी- इसलिए फ्लेक्स ज्यादा इसमें किया है बिकॉज इसका गाना मिलियनेयर वो चला, तो शायद इसने कहा क्योंकि ये टॉप अप बोनस सॉन्ग है ना एक तरह का, अभी हाँ। इसके शुरू हो रहे हैं ऑल अराउंड कॉन्सर्ट्स वगैरह शुरू हो रहे हैं, तो इसने बोनस सॉन्ग फेंका है, तो इट्स काइंड ऑफ आई थिंक क्या पता वो मिलियनेयर के पीछे जो है इसने कहा कि यार चलो लेट्स थ्रो हो सकता वन है। मोर आउट, एक हमारे पास हिट है तो उसी के ऊपर उसी तरह का एक और फेंक दो। बहुत सारे गाने हमने ऐसे पंजाबी इंडस्ट्री में देख लिए हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया, फिर भी वो गाने बहुत अच्छे हैं। हमारे वो पास बहुत सब अच्छे हैं। हिप हॉप का सबसे बड़ा आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला, एक गाने में भी लड़की नहीं है, कहाँ तक पहुंचे। नहीं मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़की ना डालो, आप लड़की के बारे में लिखो, लेकिन आप अपनी एज के मुताबिक मसले लिखो। आंटी के बारे में लिखे 40 साल का हो गया, 40 साल और 22 बहुत सारे साल के। मसले हैं भाई, और लड़कियों के पीछे भागने के अलावा बहुत मसले हैं और दुनिया में। अच्छा चलो सही है, ओके लेट्स गो। वो अभी तक वो भाग ही रहा है। दिस नाउ इज गेटिंग वेरी लॉन्ग, नाउ लेट्स कंप्लीट दिस, ओके। मैं तो बच के रही I'm a maniac, I'm a maniac, I'm a maniac, मैं तो बच के रही I'm a maniac। That was totally unnecessary. Cringe. Yeah, that was Cringe. yeah, exactly. That same word I'm looking for. Yeah. That's not Man, good. इतना अच्छा गाना बनाया है, यू हैव डन सच अ गुड जॉब विद म्यूजिक। नोट्स जो गाए हैं वो बहुत हाई गाए हैं, जो कि गाने की डिमांड थी। आई थिंक इफ़ यू आर सेइंग यू आर अ मैनियक, तो जिस जगह पे आपको ऊंचा होकर गाना चाहिए था, यू हैव हिट दैट बार, लेकिन एट द सेम टाइम वही मसला है ना, लियो जो लड़का गाने लिख रहा है उसके लिए, वो तो बेसिकली 25-26 साल का, 27 साल का है, 28 साल का भाई है। चूज तो इसने करने हैं ना, गाने गाए हाँ, गए I ना know, गाए। मैं एग्री कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। भाई ओवरऑल आई लाइक द थिंक म्यूजिक। अबाउट हिज वर्क, यस। हाँ अगर लिरिक्स स्कीम थोड़ी सी वीक है, बहुत वीक है, थोड़ी सी वीक है। अगर थोड़ी वही बात कंट्रोवर्शियल हो जाएगी कहना, लेकिन आपका अगर इतना ज़्यादा वॉर पे हो आप बादशाह के अगेंस्ट, तो आपके गाने उसी लेवल पे नहीं जाने चाहिए फिर। लेकिन म्यूजिक वाइज Music was okay. Yeah, it's music amazing, was done. it's amazing, Music was done. contrast Electronic beat thing, amazing, yes. everything music it's perfect. I हाँ। think you should listen कि जहाँ पे लिरिक्स ना हो, म्यूजिक को और वोकल्स को अलग करके ना, you should listen to the music. चलो मैं देख सुनता हूँ। We will listen to this, guys. I see it being played, this music being played in like in cars, in weddings, among the boys. I don't think so. I see it. I see it. ये वो गाना है जिस पे आप करके ना थोड़ा आप like No, literally yeah. feel Let's something. agree to disagree and just finish this here. We'll see you back in next video. Thank you for tuning in. Maybe. Bye. Bye.